which was very difficult, or you can say impossible in medical science. Not only that, in financial, relationships, or many other kind of fields, people got less and if we have any doctor in our Sangha, any doctor we have in the Sangha, bring it here, please. Okay, my God. So, we have couple of experiences where people want to share their experience, how they got blessed from Guruji. I would like to invite Mr. Sanjay Gupta, who want to share his experience with our Sangha. Mr. Sanjay Gupta, please. Respected Gurudev ji and Gurumaji, I'll speak in English and tell you all my experiences. Well, the first experience was in 2007. I took Beej Mantra from Guruji, and in 2008 I was IT consulting, so I had a problem in the Department of Labor, and the Department of Labor, they were like after us for about 18 months. They used to come to our office every few weeks and every few days, and then it happened to be like, they penalized us for about $20-30, $20,000 and $30,000. We had no choice than to, finally our attorney said that, you have to pay that, otherwise your company will be blacklisted. And we made sure that, okay, we have no other choice than to keep on doing the Beej Mantra. We kept on doing the Beej Mantras, and finally, I guess it was in December 2009, we were out of it. And we had no penalty, everything was clean. Well, our second experience is that we took again, I had a special Beej Mantra from Guruji, Vishesh Kripa, and after that, about in around March 2010, I had problem with, I was diabetic for the last 2 years. So I was just going down the elevator, and it felt like my both hands were a lot of pain. So I had a glass of water, and I was fine. Then again, after a few days, I had the same problem. We went to Washington, and you will see this in the White House and all that stuff. There I had about 8 attacks. Again, my both hands were, there was a lot of pain, and I had a bottle of water, and it was fine. The next day, we went to a cardiologist, a family friend, and she checked me and she said something is not right, and you have to do an angiography. I said, okay. So she took me to Rahway Hospital. In the Rahway Hospital, she did my angiography, and there was 98% blockage. And other thing, the second was 45% blockage. So I was there in time. So they did my angioplasty. While that I was just kept on doing my Beej Mantra, nothing else. And I was out of the hospital like in 1 night.
the doctors at the young guy what happened, which was surprising to me. After 11 attacks, I was out of it. I will just tell you a recent experience about 3 years ago what happened. I had a very major skin problem, So, Guruji gave me the mantra 3 days ago. And you will not believe, that skin problem was going on and I used all the medication. I went to the doctor, Dr. John Vinegar, and every week he used to call me and he used to give me some other medicine and everything going on. I went to Dr. Prasad and Dr. Prasad also told me some meditation, so nothing happened. It was like unbearable, but I was just managing it. Guruji gave me the mantra day before yesterday, and today, I am absolutely 100% fine. So, thank you so much. I would like to request all of you, please turn your cell phones off. Please turn your cell phones off. There are plenty of experiences, and we are short on time because we are all here to get blessing from Gurudev. So I will request Varmaji to continue the welcome. जय जी ईश्वर जी की आज्ञा। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा शिकागो से पधारे हुए भाई राजीव जी, बहन नीलम जी, परम पूज्य सर गुरुदेव जी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परमादरणीय श्री तरुण पटेल जी आएंगे और श्रीमती पुनीत जी और उनके हस्बैंड परम पूज्य सतगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। प्रार्थना है, कुर्सी जी इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ये महत्वपूर्ण सोच का, पूरे विचार का ये समय है। टू दी पॉइंट
महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो हार में, फूलों में, स्वागत में हम कुछ समय नष्ट न करें, इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई लाभ फायदा नहीं है। जो टू दी पॉइंट बात है, समय को देखते हुए, वो हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, किस लिए आए हैं, क्या चीज है, क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच है, तो हम टू दी पॉइंट एक बात करेंगे, क्या है ये। तो इसको कोई जो भी यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, क्या चीज है ये जो आए हैं सुनने के लिए, हमारे यहाँ के गिनती करने बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनके नाम अभी आपने लिए, असेंबली मैनसन, थॉमसन, कैंडिडेट फॉर फ्री होल्डर, डिक फ्रेंच, मेयर सोनी, ऋषि क्रियानो, सेनेटर बारबरा बोनो के ऑफिस से क्रिस्टीना जी, और भी अच्छे लोग बड़े विनम्रता से भरे, क्योंकि इनके चेहरों से लग रहा है कि ये बड़े गहरे लोग हैं। ये आपके चेहरे से, आपके भाव से ये समझ जाएंगे कि आप बोल क्या रहे हैं। आप अगर ट्रांसलेट नहीं भी करेंगे तब भी ये समझ जाएंगे, इनके अंदर इतनी गहराई है, इतना फीलिंग है इनके अंदर, इतनी इंट्यूशन है इनके अंदर। तो टू दी पॉइंट जो बात है उसको हम करेंगे। और इनका मैं स्वागत करता हूँ, जो आए हैं, इनके नाम गुलशन जी को ले देंगे, कह भी देंगे, और जो मैंने बोला उसको संक्षेप में टू दी पॉइंट ट्रांसलेट करेंगे। फिर जो टू दी पॉइंट हमारा मैसेज है वो हम इनको देंगे कि हम ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, गुलशन जी से ट्रांसलेट करेंगे। Guruji is saying, these leaders who have come to bless the stage, to meet the Guruji, that these people are so intelligent that they can read your faces. They don't need to get it translated even. They can understand what we're saying in Hindi also. That's why they are where they are. So again, as Guruji is saying, to the point, we don't want to go into the details of the translation. That's why they are the leaders, because they can read your faces, they can tell you what you're feeling inside, and that's what they are. ये जो सारा जगत है, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा नाम है, जो हमारा देश है, जो हमारे धर्म है, जो हमारे रिलीजन है, जो हमारे नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की, वो साउंड में आधारित है, साउंड से बने हैं। हमारा प्रेम भी, हमारे युद्ध भी, हमारी लड़ाई भी, हमारे झगड़े भी, जो कुछ भी जगत में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो साउंड में आधारित है। अगर लोग जो अंधे हैं, जिनकी आंखें नहीं, उन पर दया करते हैं, अगर कोई आदमी, क्योंकि अंधा आदमी जो होगा वो गा भी सकता है, बोल भी सकता है, सीख भी सकता है, और काम भी कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो बहरा आदमी है, जो बचपन से बहरा है, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो ना पढ़ सकता, ना लिख सकता, ना काम कर सकता, ना, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं। उसकी एक छोटी सी लैंग्वेज है, छोटी सी दुनिया है, क्योंकि ये सारा जगत साउंड पे आधारित है, आवाज पे आधारित है। तो इसके जो रहते हैं साउंड के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितना जो पहले मैंने बोला है, एक साइंस के आधार पे, हम धर्म के आधार पे नहीं बात करें। हम जैसे सूरज है, सूरज का कोई धर्म नहीं है, सबके लिए बराबर है। पानी का कोई धर्म नहीं है, जल, मिट्टी, जमीन का कोई धर्म नहीं है, हवा का कोई धर्म नहीं है, सच है, ये फैक्ट है। फेथ की जरूरत नहीं है, फेथ उसमें किया जाता है जो फैक्ट ना हो। अब सूरज पे कोई फेथ नहीं करता क्योंकि फैक्ट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये फेथ करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट है ये। पहले इसकी ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद मैं जल्दी टू दी पॉइंट जो है उस पे आऊंगा। What Guruji is saying, all our beliefs are based on the sound, such as our educations, our systems, business principles, they're all based on sound. And the secrets of sound are such as sun. Sun has no fate. It's same for everyone, for Indians, Americans, Chinese, Europeans. Sun doesn't discriminate against anybody. It shines on everywhere the same way. Same the air. Air is the same everywhere in the universe. So again, it's on the facts.
is not on the faith. So that's what the Guruji is bringing the message so that we all can understand. Again, all our beliefs are based on the sound. Thank you. एक तो जो भी हमें नजर आ रहा है, जो भी हमारा सिस्टम है, हमारे जो भी हमें नजर आ रहा है, ये मैन मेड है। गॉड मेड कुछ चीजें जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, कुछ चीजें गॉड मेड है और कुछ चीजें मैन मेड है। Our systems are based on earth, fire, and the skies, which are again not on the faith, it's based on the fact basis. अब मैंने क्या बोला, इसको पूरा बताओ। कुछ चीजें गॉड मेड है, कुछ चीजें माइंड मेड है, मैन मेड है। The few things are God made, few things are man made, which is God made our earth, sky, fire. The human made are just as the materialistic things which we use every day. कुछ चीजें आदमी ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इमोशन के लिए, अपनी भावना के लिए, अपने लव के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने फेथ के लिए बनाई है। धर्म है, ये आदमी ने धर्म को परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा एक है, ये सभी मानते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी मानते हैं एक पिता है, एक हमारा परमात्मा है, हमारा सबका एक गॉड है। और जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानने वाले परमात्मा को, वो भी एक तत्व को मानते हैं। एक तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बाहर एक तत्व है जिससे ये सारे कार्य करते हैं। एक तत्व है, एक को सभी मानते हैं। और सभी अगर ये मानते हैं हम एक परमात्मा की संतान है, अब एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, और सभी अगर बेटे माने कि मेरा फादर एक है, तो वो क्यों लड़े? वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों बनेगा? फादर को थोड़ी बनाएगा कि तू एक हिंदू बन जा, एक मुस्लिम बन जा, एक सिख बन जा, एक ईसाई बन जा। फादर क्यों बनाएगा? ये जो धर्म है सारे, ये हमने अपनी सुविधा के लिए, हमने अपने प्रारूप के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी भावना के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने उस परिवेश की उपयोगिता के लिए बनाए हैं। पहले तो ये समझ लो। Well, the human made the faiths. They made them on their convenience. What is good for them, they believe on those things. As the Guru is saying, the father has 5 sons, or 6 sons, or 4 sons. Father doesn't differentiate between them. They either become Christians, Muslims, Hindus, or Jewish. All these things, humans make them on the basis of their conveniences. What is convenient for them? The humans, and again, they don't want us to create the differences. Father doesn't want to create the differences, but we create differences ourselves, so that what is good for us, what is not good for us. ये जो अब जैसे वाली आंख है, सब ये नहीं है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, क्योंकि ये फादर ने गॉड की क्रिएशन है, ये नेचर की क्रिएशन है। हमारा लीवर है, किडनी है। अगर परमात्मा ये बनाता, अगर गॉड ये बनाता, तो हिंदुओं की अलग साइन बना देता, मुसलमानों की आंख के ऊपर लगा देता, ईसाइयों की आंख के 4 लगा देता, किसी के कुछ ये सिस्टम जो सारे हैं, ये परमात्मा हमारे साइन के लिए, पहचान के लिए अलग अलग ये शुरू से लगा के नहीं देता। When the human comes on the earth, God does not differentiate them. He makes them one. He could have made us differently. If the Muslim, he can make the things, nose or ears or eyes look different ways. But no, God does not believe in the different things. He makes us. So that's why he did not create difference. But the difference is created by humans only. फिर जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हैं, अब ईसाई है वो बाइबल को मानते हैं, सिख है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, मुसलमान है पुराने पाक को मानते हैं, हिंदू है वेदों,
गीता को, रामायण को मानते हैं। अब वेद में लिखा है गॉड इज वन, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक परमात्मा ने ही ये सब बनाया है। मुसलमान भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के भी जिस्माने दिल मौजूद दोस्त हर से विनी बिदा के मुझे गॉड इज वन। हिंदू भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजनी से भंग गुरु प्रसाद। जब एक गॉड ने ये सब बनाया है, हम उसके बच्चे हैं। एक पिता एक से हम बालक, एक पिता है उसके हम बच्चे हैं सारे, उसके हम सेम ईसाई गॉड इज वन। सारे अगर ये कह रहे हैं गॉड इज वन, तो ये तुम अलग अलग कैसे बने हो? ये जो अलग अलग बने हैं ये मैन मेड है, सोसाइटी मेड है, हमारी सुविधा के लिए, हमारी भक्ति के लिए, हमारी भावना के लिए, हमारी जरूरत के लिए। गॉड मेड नहीं है धर्म। ये जो रिलीजन है ये परमात्मा ने नहीं बनाए, परमात्मा ने एक ही धर्म बनाया है। क्योंकि रिलीजन और धर्म का अलग अर्थ है। ये जो अर्थ किया जाता है रिलीजन और की ट्रांसलेशन धर्म, रिलीजन का अर्थ संप्रदाय होता है। हम लोग बैठे हैं, अब जैसे अमेरिका है, अब आप अमेरिकन हैं तो अमेरिकन कोई धर्म थोड़ी है, अमेरिकन है। अब हिंदू धर्म कहां से बना? जो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के पास रहते थे, सिंधु घाटी की नदी के पास, जैसे पंजाब में रहते हैं हम उन्हें बोलते हैं पंजाबी। अब पंजाबी धर्म थोड़ी है, जो पंजाब में रहते हैं वो पंजाबी है, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पास रहते थे उसे लोग सिंधु सिंधु बोलते 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 शब्द हिंदू बन गया। हिंदू धर्म नहीं है। अगर धर्म होता तो गीता में लिखते थे भगवान अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। और उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, जब कृष्ण भगवान के समय में थे। पहली बात हमने समझना है कि ये जो बनाए हैं रिलीजन का धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण किसे करना? जो सच है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है जो आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच हम इसे मानते हैं कि जो आदमी सच बोलता है वो सच नहीं है। सच वो है जो पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसका नाम सच है। इसकी पहले ट्रांसलेट करें, फिर मैं आगे। As the Guru is saying, everybody believes God is one. So if the God is one, we all believe in different things. But the religion, as the Guru is saying, religion is a faith, and faith is a belief. What we believe in. Like Muslims believe in Quran, Hindus believe in Gita, Christians believe in Bible. We also believe in Veda and Gita. If you follow, so God does not believe in different things. God believes in one thing. As again said, that He made us look alike, from our eyes, ears, nose, our actions also. As the America stands, America is a nation. It's not a religion. Same thing Hindu, where it came from Hindu. Hindu came from the Sindhu Ghati. So people just came there, you're a Sindhu, but Sindhu became into a Hindu. So that's how the religion Hindu came. But Hindu is not a religion, as the Guru says, it's a religion. शिष्य का अर्थ है शिष्य, जो सदगुरु का, गुरु का। अब डिसाइपल को धर्म थोड़ी है। अब एक टीचर का कोई डिसाइपल है तो डिसाइपल है। शिष्य का अर्थ है जो शिष्य है, जो सतगुरु के पास आ गया, जो सतगुरु के शरण में आ गया, जो उसकी बात को मानता है, वो सिख है। और मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान। मुसल्लम का अर्थ है खुदा, गॉड, परमात्मा। मुसल्लम एक ही चीज है, वो है खुदा, बाकी मुसल्लम नहीं है। मुसल्लम का अर्थ है पूरी। अब अमेरिका पूरा थोड़ी है, भारत पूरा थोड़ी है, पाकिस्तान पूरा थोड़ी है, कोई भी पूरा नहीं है। देश भी पूरा नहीं है, हम भी पूरे नहीं है, समुद्र भी पूरा नहीं है, ये भी अधूरा है, नदी भी पूरी नहीं है, हवा भी पूरी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन मुसल्लम का अर्थ है पूरा। मुसलमान का अर्थ है जिसका ईमान पूरा है कि एक खुदा है, बस। ऐसी ईसाई का, ऐसी हिंदू का,
हिंदू वो है, हिंदू की ये मर्यादा है जो एक परमात्मा को मानते हैं। सिख वो है जो शिष्य है, जो ये मानता है एक ओंकार, एक परमात्मा है। ईसाई वो है जो मानता है एक गॉड है, एक परमात्मा है। इसकी ट्रांसलेट करें। Teacher is one and disciple is one. Who's disciple? Who listens to Guruji. Muslim, as I said, Guru saying, Muslim is full, is Khuda. America is not full. Air is not full. Pakistan, India, they're not full. The only is, as the wording in the Muslim comes, is a full. Christ, Hindus, Sikh, again, everybody believes in the God is one. So why can't we believe in God is one? Why can't we say that we're all the creature of one God? So this way we leave our hatred behind and become one in the world. So that all this violence in the world should go away. अब वो वन गॉड है, जैसे एक पानी है, पानी की बोतल है, एक आदमी लड़ रहा है, ये सूरज के लिए लड़ रहा है। एक आदमी कहता है उसका नाम सन है, दिखा है नहीं, कमरे में बैठा है, अंधेरे में बैठा है, खिड़की बंद है, बाहर निकलता नहीं। वो कमरे में बैठे चार आदमी, एक कहता है सन 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 जप रहा है, और एक जप रहा है सूरज सूरज सूरज, एक जप रहा है सूर्य सूर्य सूर्य, एक कोई और नाम उसका रख दिया, सूरज के कई नाम रख दिए, और सब आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है सन बोलो, वो कहता है सूर्य बोलो, वो कहता है सूरज बोलो, वो कहते हैं अद्वितीय बोलो। इस नाम से लड़ रहे हैं। जब वो सारे देख लेंगे कि सूरज ये है, अगर उनको कुछ कमरे से बाहर निकाल के बता दे कि ये सूरज है जिसके लिए तुम धर्म बना के खड़े हो गए, किसी ने अद्वितीय धर्म बना दिया, किसी ने क्या धर्म बना दिया, किसी ने सूर्य, किसी ने सन। जब एक सन है तो उसके लिए लड़ जो रहे हो, बंदूकें जो मार रहे हो, उसके लिए एक दूसरे की गर्दन काट रहे हो। बोलो। As the Guru is saying, we sitting in one room and we're fighting for the same sun, which is sun is one. Some are calling the name of the sun, some are calling him the Suraj, some are calling him the Surya. We are all fighting for one thing, but it's one thing. We shouldn't be fighting for it. If they come out of the room, they're sitting in one room and fighting for one thing. But if they come out of the room, they'll see the sun is one, which is shining in all over the world. Every human being, every person, every living creature, every tree. So, Guruji's message is, let's not fight for it. It's one, it will stay one with us. Let's enjoy it. और एक फादर के 5-6 बेटे हैं। एक फादर डॉक्टर है, एक बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। एक अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर है, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। और अगर एक बेटा डॉक्टर इंजीनियर को मारेगा कि तू डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों बना, इंजीनियर डॉक्टर बन, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तो फादर उसमें खुश तो नहीं होगा। फादर कहेगा क्या प्रॉब्लम है, तू डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इसमें क्या दिक्कत है। अब हमने डॉक्टर को धर्म बना लिया, अब हमने इंजीनियर को धर्म बना लिया, अब हमने आर्टिस्ट को धर्म बना लिया। ऐसे ही अगर हम एक परमात्मा है, ये सारे धर्म ग्रंथ सबके मानते हैं परमात्मा है, एक परमात्मा है, तुम एक परमात्मा की संतान है। अगर हम एक दूसरों को काटेंगे, मारेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से, तो क्या हमारा एक परमात्मा जो है वो खुश होगा? वो तुम्हें आशीर्वाद देगा? वो आनंदित होगा क्या, या रोएगा अपने माथे पे हाथ रख करके कि मैंने इन दोनों को पैदा क्यों किया? One father has 4, 5, 6 sons. One becomes engineer, one becomes doctors, artists. But when father says, "Oh, why did you become doctor? I want you to become doctor." We made that religion, doctor, as a religion, but that shouldn't be the case. If the God is one, whatever one person wants to become, becomes good at that, that should be the thing. We are all children of one God, Hindu, Muslim, Sikh, Christ. Whatever we are, we should be happy with that. And again, we should live in peace, so the world can stay as one unit.
अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात है, वर्ड है। जैसे मैं आपको पानी के बारे में बोल रहा हूँ, पर ये पानी के बारे में बोलना पानी नहीं है। जैसे मैं आप कमरे में बैठे हैं, मैं आपको सूरज के बारे में बोल रहा हूँ कि तुम लड़ो मत, ये सूरज एक है। पर ये बोलना फैक्ट नहीं है। फैक्ट तब होगा जब मैं आपको कमरे से बाहर लेके जाऊंगा और मैं देखूंगा ये देख लो सूरज। पानी के लिए जो आप लड़ रहे हो आपको पता नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि ये पानी है जिसको तुम आप बोल रहे हो, वाटर बोल रहे हो, जल बोल रहे हो, इसके लिए तुम लड़ रहे हो, धर्म बना के बैठे हो, ये पानी पी लो। एक बोतल पे आप लिखा है, एक बोतल पे वाटर लिखा है, एक बोतल पे जल लिखा है, एक बोतल पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया आपने, और उसके लेवल से नाम से लड़ रहे हो। जब आप पानी पियोगे आपको लगेगा ये तो एक ही है, इसके लिए हमें धर्म बनाने की क्या जरूरत है। तो मैं अब ये बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको पानी नहीं दिया, अभी मैंने आपको वो सूरज नहीं दिया, सूरज आपको नहीं दिखाया, अभी आपने परमात्मा का गॉड का नाम सुना है और सभी कहते हैं परमात्मा पास है। वजह की बात ये है कि सभी ये कहते हैं परमात्मा हमारे पास है। कुरान पाक में लिखा है कि खुदा सारग से नजदीक है। ये श्वास की जो नली है ना, इससे भी नजदीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि नाल हवंदा ले न सकंदा सार न जाने मुड़ा माया मद माता बुझिया बाता मिलन न जाई भरमुंदड़ा कह नानक गुरबिंदी सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है, इतना पास है कि तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतरा, जहां जहां देखा ताता तू है तुझसे निश्चित फूट भरा। जैसे समुद्र में मछलियां हैं ऐसे हम परमात्मा के अंदर है। इतना पास है, इतना नजदीक है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। मुसलमान ये मानता है खुदा सारा से भी नजदीक है और जब बात करेगा तो ऊपर से देखिए वो खुदा। अभी मेरे सामने असेंबली मैन है सैम थॉम्सन जी है, बैठे हैं, तो मैं बोलूं अगर वो थॉम्सन, तो आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो। अगर मैं बोलूं वो वाहिगुरु, वो गॉड, तो हम सब सुन लेते हैं। और ग्रंथ ये कह रहे हैं कि खुदा हमारे पास है, एकदम पास है। ऐसे जैसे मछली समुद्र के अंदर है, अगर मछली कहे वो समुद्र, तो दूसरी मछली कहेगी जो जानने वाली है ये क्या बोल रही है। अभी कह रही है मेरे पास है और हम वो उसे बोलते हैं जो दूर होता है। और ये दैट एंड दिस दो शब्द है। दैट इसे बोलते हैं जो वह है जो दूर है, दिस बोलते हैं जो ये है। तो अंडरस्टैंडिंग अज्ञान से, ना जानने से ये युद्ध है। अभी मैं आपको बताऊंगा खुदा है क्या, और वो जब आप उसे देखोगे जानोगे आप कहेंगे अरे ये खुदा, हम तो ऐसे ही लड़ रहे थे हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से आपस में लड़ के हमने जमीन को बांट दिया। किसी ने पाकिस्तान, किसी ने अमेरिका, किसी ने कनाडा बना के रख दिया, किसी ने हिंदुस्तान बना दिया। अब सूरज कल हमारी पकड़ में आ जाएगा। अभी वैज्ञानिक लगे हैं तो एक वैज्ञानिक कह देगा ये आधा जो सूरज है ये ईसाइयों का है, अमेरिका ने बांट दिया, आधा कनाडा ने ले लिया, आधा इंग्लैंड ने ले लिया, बाकी सारे पाकिस्तान, इंडिया सबको बांट दिया। अब ये करेंगे बात अगर इनकी पकड़ में आ गए। बोलो पहला। As the Guru is saying, the God is one, and air, water, sun, they're all common between humans. Earth maybe can be divided into different countries, but how can you divide the sun? Is there a way we can divide the sun? I don't think so. Can we divide the air? I don't think so. We can divide the skies areas, but air, you cannot capture the air and okay, you will not go there. God is within us. God stays with us as like God and us cannot be separated, like the fish and water cannot be separated. If they separate, they die. So if God is not with us, we will not be living for a second even. So if we are sitting here, that means God is with us. God is here with you, everywhere. अभी ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने बातें सुनी है, गीता में भी सुनी है, पुराने पाक में भी सुनी है, बाइबल में भी सुनी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी सुनी है। बातें हैं उससे बदल नहीं रहे।
अभी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि ये कार्ड है जिसके बारे में बाइबल कह रहा है, जिसके बारे में गीता कह रहा है, जिसके बारे में वेद कह रहे हैं, जिसके बारे में सारे कह रहे हैं, जिसके बारे में विज्ञान भी कह रहा है, एक तत्व है हमारी समझ में नहीं आ रहा, वो उसकी मैं साइंस आपको बताऊंगा जब आप जानेंगे ये कार्ड। फिर अभी ये प्रवचन, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये प्रवचन है, इससे आपका कोई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कल्याण होता तो बाइबल से आपका हो जाता, गीता से हो जाता, आपका ग्रंथों से पढ़ पढ़ के हो जाता। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो। और ग्रंथ ये कहते हैं तुम आपस में प्रेम करो। ग्रंथों को पढ़ के भी तुम लड़ रहे हो, और ग्रंथ ये कह रहे हैं तुम प्रेम करो। जीसस ये कह रहे हैं तुम प्रेम करो, लव इज गॉड। पूरा गुरु साहब एक बात करता है कि जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभु पाए हो। जिसने प्रेम किया उसने प्रभु पाया। तो कौन सिख प्रेम कर रहा है? सिख जैसे देखेगा मुसलमानों को, मस्जिद को, और उसको उसके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, कोई झुकेगा नहीं सिर। गुरुद्वारा क्या नहीं झुकेगा। मुसलमान जैसे मंदिर को देखेगा तो वो कहेगा कैसे मैं तोड़ू इसको। हिंदू जब देखेगा मस्जिद को तो वो कहेगा इसको तो देखना ही पाप है। ऐसे ये हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में ये विचार डालेंगे, शब्द डालेंगे। As the Guru is saying, we are not trying to change the universe. All the Vedantas, all the books, all the Bibles, Qurans, Gita, they're all talking about the same thing. Everyone is saying, do the love between humans, live peacefully. But by reading all those books, we do the opposite things. We're fighting for it. If the Hindu says there's a masjid, let's break it. Muslim says there's a mandir, break it. Let's build the masjid. But it shouldn't be the case. By reading all those books, we should believe those things. All those books not teaching you the bad things. But I don't know where we get those feelings that we should do things. Those kinds of feelings should be going away, and we should be living in peace. जो मेन बात मैं बोल रहा हूँ कि ये सुनने से आप बदलोगे नहीं। मैं आपको वो बता रहा हूँ गार्ड के रास्ते में, जिससे आप देखते बदल जाओगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। If you believe in God, as Guru is saying, all the problems will be solved. अब ये शब्द मैंने बिलीव नहीं बोला, अब इसकी ट्रांसलेट करें बिलीव। मैंने बिलीव का शब्द ही फाल्स है। बिलीव का मतलब झूठ। अब सूरज में हम बिलीव थोड़ी करते हैं। सूरज पे कोई सूरज फैक्ट है। पहले इसकी ट्रांसलेशन करो कि मैंने गलत की थी। गुरु जी कह रहे हैं कि बिलीव, मैं उन्होंने बिलीव नहीं कहा। इंग्लिश में उनको बताएं कि ऐसे जैसे मैं गलत हो रहा हूं, ऐसे सारे गलत हो रहे हैं। Guru is saying, do the good things, do the right things, and all the problems will be solved. ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने राइट रूट बोला ही नहीं। मैंने ये बोला है कि आप अपने आप ही आपकी आंख आ जाएगी। अब आप अंधे को बोल रहे हो ठीक ठीक चलो, अंधा ठीक चलेगा ही नहीं। मैं बोलता हूं आप आंख लो, आप अपने आप ठीक चलोगे। ठीक है, ये पहले तो अपनी गलती जो आपने बोला है वहां से चालू करो, उनको बताओ। ये जो सारी वार्तालाप है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या तो और अच्छी इसको समझने वाला है, क्योंकि ये डर रहे हैं कि मैं तो गलत हो जाऊंगा। Guruji is saying that कौन कर लेगा इंग्लिश में जो अच्छी, ये धीरे धीरे ढीला बोलता है। मेरी तरह ऐसे फास्ट बोलने वाला इधर में तो नींद आ जाएगी आपको। थोड़ा फास्ट बोलो। अब शादीशुदा होगी तो धीरे धीरे बदलने के साथ चलेगा। वो क्या चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा फास्ट चल,
वाइल्ड कर, वाइल्ड बन। ठीक है, चलो अगर ठीक हो तो चलेंगे, तो दो बुलाते हैं। करो, नहीं रिपीट नहीं करूंगा। अब आप सुनते, आप सुन ही नहीं रहे, जिसने सुना हुआ है। बिल्कुल ने सुना है, जिसने ये सारी वार्तालाप को सुना है और वो इसको समझा सकता है फास्ट से और लंबा नहीं, जल्दी में। ये आगे दोनों को माइक दे दो। अगर एक गलत करेगा तो दूसरा ठीक करेगा। खड़े रह जाओ, आप भी यही खड़े रह जाओ, एक माइक आप भी पकड़ लो। I think Guruji said, nobody asks you, do you believe in the sun? Because the sun is there. That's the same thing. Do you believe in God? Nobody asks you, God is there. क्या गलत है? We're having a show pronunciation. So Guruji asking to first admit we are not doing the pronunciation. And तो फास्ट बोलने वाला, जोर से बोलने वाला है। ऋतु का कर, ऋतु को दे, गुलशन जी को दे, यही करेंगे। बोले गुलशन, बाकी बैठ तो सकते। अभी या तो मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगी या मैं इनको हिंदी सिखाऊंगा। गुरुजी मेरे को हिंदी सिखाएंगे। बोलो। What Guru is saying, he doesn't talk about belief. As the things are there, belief you believe, but Guru doesn't believe in belief. But what he's saying, again, Believe means no fact. it is the fact. So if you say belief that you're not trying to be a fact, but these are the fact things. What Guru is talking about, all the facts, air, sun, water, they are all the facts. जब तुम एयर सन पे, इन पे बिलीव नहीं करते, फैक्ट है, तो गॉड पे क्यों विश्वास करते हो? गॉड पे क्यों नहीं फैक्ट है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें गॉड का पता नहीं है। अब मैं तुम्हें गॉड के बारे में बताऊंगा, बस दो लेने हैं, ये बोलो। See, if you don't believe the air, God, air, sun, and when they are a fact, the God is a fact also. So that's what the Guruji's message is. That he will tell you the Guru, the God is the God, is the fact. So he was. और फिर गॉड पे आप बिलीव नहीं करोगे। अब मैं गॉड पे बिलीव नहीं कर रहा, मैंने गॉड की कसम गॉड को देखा है, जाना है। What Guru is saying that Guruji has seen the God. God is the fact. It's not that he's believing that God is the fact and he has seen. और मैं वो आपको भी बताऊंगा कि अगर मैंने अकेले देखा है तो आपको नहीं पता, उसका आपको क्या फायदा? उसका अर्थ ये है कि जैसे मैंने जाना है ऐसे आप भी जाओ। तो ये हमारा ये है कि जो मैंने जाना है, मेरे लिए पाठ पूजा, मूर्ति पूजा, धर्म को नहीं मानता था। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का फ्रेंडली रूप से एक प्रारूपों के अंदर था मैं। तो बोलो। What Guru is saying, how he achieved the God, he has seen the God. Same he wants to teach you the thing how he can achieve the God. And you, not just believing it, make sure the God is the fact, and he will show you the way to reach to the God. आगे ये बोले। The Guruji has been friendly with the prime ministers, presidents, of the different countries, not just in India. Guruji travels all over the world, and all the dignitaries, they are friendly with them, and he teaches them all these things, that how do you reach to the God. अभी वो जो रहस्य है, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे तन की प्रॉब्लम है, हमारे मन की प्रॉब्लम है, हमारे धन की प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली की है, बच्चों की है, पत्नी की है, पति की जो प्रॉब्लम है, देश की है। अभी इस देश में अर्थव्यवस्था कितनी एक डाउन हो गई है,
मैं आपको ऐसा रहस्य दूंगा, आपके देश की अर्थव्यवस्था बहुत हाई हो जाएगी। इतना सुंदर, क्योंकि सुंदर देश है। Guru is saying we all have all kinds of problems, financial, wife, girlfriend, some of them. गर्लफ्रेंड क्या मेरे तो नहीं बड़ा ग्रुप है। No Guru is saying add it to this one. तो ये भी बोलोगे मैंने ऐड की है। So, what Guru is saying, this is a beautiful country, America is a beautiful country, but we're going through a hard time financially, economically wise. So he wants to show us the way that we get out of the financial problem. So this beautiful country stays a beautiful country all the time. और अगर ये कंट्री ठीक होगी, ये कंट्री सुखी हो जाएगी, इस कंट्री से ड्रग रोग, ये स्मैश खत्म हो जाएंगे। अब बच्चे का मेंटली लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। जो इस देश में वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर जिस तरह से एजुकेशन दुनिया लेती है, उस तरह से बच्चे नहीं है। तो ये देश में जितने सुख हो, अगर ये देश सुखी है, धन है, तो पूरा वर्ल्ड सुखी है। अगर इस देश में प्रॉब्लम है, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। इस देश के बच्चे खराब है, तो पूरे वर्ल्ड के बच्चे खराब हो जाते हैं। इस देश के बच्चे ठीक है, पूरे वर्ल्ड के ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको वो रहस्य दूंगा, इस देश की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो जैसे वो आनंद लेते हैं ड्रग में, स्मैक में, पब में, डिस्को में, उससे 1000 गुना ज्यादा वो बिना उसके मजे लेंगे। वो शराब अपने सामने रख लेंगे और ये जो मैं दूंगा ये भी ले लेंगे। शराब उससे पी नहीं जाएगी। जैसे $1 पड़ा है, आपके हाथ में $1,00,000 है, आप $1 को उठाएंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में लाखों डॉलर है। What Guru is saying, if America is healthy financially and is wealth, which is the wealth of the young generation, if healthy and wise, if they don't go into the drugs and liquors, then all the world is also healthy, which Guru is saying that he will show us the way that this country will become financially strong, and all the young generation coming out, they won't be able to drink liquor, won't go into drugs, the way he will teach us, so that all these kids will not go into those kind of things. Even if the liquor is sitting in front of them, they won't be able to drink it. Thank you. अभी कुछ छोटे रोग है जिसका इलाज ही नहीं है मेडिकल स्टेज में। मैं आपको कुछ साउंड के सिस्टम बताऊंगा, साउंड के। अब जैसे किसी का लिवर में बिलिरुबिन बढ़ा है, बिलिरुबिन ज्यादा, डॉक्टर टेस्ट कर देगा। कुछ पत्ते हैं, उस पे मैं साउंड का एक सिस्टम, जो नया नहीं है, मेरा नहीं है, जो सब ग्रंथों में लिखा है, वो मैं साउंड का आपको सिस्टम दूंगा, वो करेंगे। डॉक्टर थोड़े दिन के बाद फिर उनका बिलिरुबिन लीवर का टेस्ट करेंगे। अब जैसे आपको खांसी है, खांसी के लिए दूसरे कफ सिरप लेते हैं, कई दिन लगे रहते हैं, काली मिर्च हम सभी खाते हैं। मैं आपको एक साउंड दूंगा, वो किसी धर्म की नहीं है, एक साउंड है। वो साउंड 1 मिनट करने के बाद आप काली मिर्च मुंह में डाल लेना। काली मिर्च तो दवाई नहीं है, हम सभी खाते हैं, ब्लैक पेपर। आप मुंह में डालेंगे, 1 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ना आपका पैसा लगेगा, ना आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी, और सरकार पे भी जो इतना बोझ है वो भी कम होगा। प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। जो भी मेडिसिन खाएंगे उसके साइड इफेक्ट है, सबके अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे गैस है, गैस का आप कितनी दवाइयां खाते हैं? 1 मिनट में जो आप घरेलू फूड प्रोडक्ट है, वो मैं जैसे काला नमक, आप अभी प्रयोग कर लो, 1 मिनट में काला नमक ले लो, काली मिर्च ले लो। एक साउंड दूंगा मैं आपको, वो साउंड को बोलने के बाद काला नमक, काली मिर्च मुंह में डाल लेना, चूस लेना, टेस्टी भी है, हम सब नॉर्मल खाते हैं। 1 मिनट में आपकी गैस ठीक हो जाएगी, या आप अभी जांच करके चेक कर सकते। Guru is saying, he will give you a few tricks. Not treatment. Sound treatment, give you some sound treatment. Not treatment. This is not a medical, not treatment. A universal fact. Not remedy. No medicine, no remedy, no doctor, no nothing. Universal, ancient science, universal. Sound therapy.
sound system, not therapy, system. Guruji will give you a sound system, which is a therapy which is coming out from ages from our universe. After that, you eat black pepper or black salt, and all your those if you're coughing problems. कोई यहाँ पर डॉक्टर है? डॉक्टर बैठ जाओ। और कोई? Any other doctor? Yes. डॉक्टर तो Any other doctor also, please? Please come. अब ये डॉक्टर कहेंगे अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कौन से डॉक्टर हैं, क्या है? My name is Rajendra Sharma. I'm a surgeon here in the university. उधर बोले, उधर मुंह करो, खड़े हो जाए। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। इंग्लिश में बोले। My name is Rajendra. I practice surgery here in New Jersey. अभी जो मैंने बोला उसकी ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन करो मेडिकल ढंग से। The treatment Guruji is suggesting is the treatment. ट्रीटमेंट नहीं है ये, नॉट ट्रीटमेंट, The remedy. नॉट रेमेडी। ये एंशिएंट यूनिवर्सल साइंस, साउंड साइंस। There is a science of sound, and by repeating that particular sound, and you can get rid of all your ailments. And he's suggesting that if you repeat the sound, and then you have a problem with cough, you can take black pepper and chew it, and soon your cough will be gone. And if you have flatulence, you can take black salt, and your problem with the flatulence will be gone. वो साउंड से अब आप ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट वैसे भी ले लो, कुछ नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नहीं होगा। वो एक आधे मिनट की साउंड को करने के बाद आप खा लेना, और खाना भी नहीं, चूस लें, और 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। 1 मिनट में। The relief you get is not purely based on taking the black pepper or taking the black salt. It's because of the sound, and he will tell us what that sound is. अब जैसे लीवर के बारे में जो मैंने बताया था, बिलिरुबिन ऐसी होती है, ऐसी पीटी नॉर्मल हो जाता है, वो सुना है आपने? The person, the patient who is suffering from hyperbilirubinemia, the bilirubin is high, his liver is damaged. Such people have the relief of their symptoms after repeating the sound. अब पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? पत्नी को समझाते रहो, वो मानेगी नहीं। पति को समझा दो, वो भी नहीं मानेगा, लड़ रहे हैं, और अल्टीमेट कोर्ट में चला जाता है, तलाक तक बात आ जाती है। 10 आदमी पकड़ो जिसकी तलाक आने की स्थिति आ गई, 10 हस्बैंड वाइफ है, एक्सपेरिमेंट कर लेना। उसको बोलो थोड़ी देर सुबह और शाम अपने अपने घरों में ये साउंड थेरेपी कर लेना थोड़ी देर। थोड़े दिनों में वो जो तलाक ले रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के लिए मरने लग जाएंगे। When there is a problem with husband and wife and they don't get along with each other and they come to go to the court and ask for divorce, such people, if they will repeat that sound with the help of the cosmic sound, they will be able to like each other and to live with each other. और ये कोई आपका धर्म नहीं बदलता, कोई इसमें पैसे नहीं लगते, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई इसमें तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, कोई इसमें सुबह शाम का फर्क नहीं है, सिंपल सा सरल है ये। The methodology is very simple. It's based on the sound and it has no relationship to anyone's religion or religions. अभी जैसे किसी आपके पास धन नहीं है, धन की प्रॉब्लम है, आप सुबह शाम थोड़े समय ये करना, आपके पास इतना, मैं इतना गरीब था आप सोच भी नहीं सकते, जहां मैं रहता था आप देखते, आप थोड़े समय ये करेंगे तो आपके पास कहां से धन आने लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। If you are short of cash and having
problem paying your bills, you can use the sound, and in time you will find that your resources are coming back to you and you'll be able to meet all your financial needs. It's a way of getting out of poverty. अब बच्चे आपका कहना नहीं मानते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ड्रग लेते हैं, कुछ लेते हैं, आप उनको समझाते हैं, नहीं मानेंगे। आप केवल 5-10 मिनट सुबह शाम उस साउंड का प्रयोग करना, और बच्चे एकदम जो सब्जेक्ट उनकी समझ में नहीं आता वो समझ में आने लग जाएगा। कोई दवाई नहीं है, थेरेपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा करे, अब एक बच्चे के पढ़ रहा है, एक सब्जेक्ट उसके अंदर आ नहीं रहा, वो बड़ा जोर लगाता है, नहीं आता, उसको बोलो ये 5 मिनट ये साउंड का जो सिस्टम है, ये करने के बाद आप सब्जेक्ट को कर लो, एकदम सब्जेक्ट आपके अंदर आ जाए एकदम। दूसरा और भी है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, 4, 5, 6 साल का है, वो उसको समझ में नहीं आता, जब वो सो जाए तो रात को जब वो सो जाए उसके कान में या उसके बिस्तर पे आप खड़े होके बोल देना 5 मिनट के लिए। सुबह वो उठेगा, उसका पढ़ने में, स्टडी में मन लगने लगेगा, वो एकदम चेंज हो जाएगा। By the help of this cosmic sound, you can also help your children. If the kids are fighting with each other and you take time to punish them or to teach them how not to fight, many times they are not even listening. Instead, you repeat the cosmic sound and you will find that they start loving each other. And if a child is having difficulty in school and he doesn't have a liking for a particular subject, by saying, repeating the sound, you will find that he is able to get better grades in that particular subject. गुरु जी जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको जाने का वक्त हो गया। आज हम मेरे पास से प्रसाद को देते हैं फूल, इनके स्वागत में ताली मारे सभी जो हैं। एक जो इन्होंने सुना, उनके इनके बारे में शिक्षण होती है जो बोला है, इनसे दूसरे इनके विचार है कि लोग सुन गए, जो इन्होंने सुना है बैठ के, इनके भाव सुने इसको फुलसिद्धि करेगी। Mayor, Assemblyman, could you say a couple of words about this? Whatever the designation was. The translation was actually good. I understood that God is one, and there's one God in all of us, and that there are many ways that we can live in peace. All of us. It makes no difference what our religion is, what our nationality is. We are one people, and the important thing is to take Thank you so much for coming today and sharing your words of wisdom with us and our community. As the mayor said, we are all one community. We had a very unfortunate incident here just a couple of weeks ago in the town I live in, Old Bridge, where a member of the Indian community was viciously beaten to death. As I said at that time, it was an attack from the whole community, not just the Indian community, because we are one and we stand together. The attack on one is attack on one. I too want to thank you very much for being here and the message that you delivered to all of us. Not just to you folks here, but to all of us who take home
some of what we have heard tonight. And it is all of us. We are one people. And I want you to know that because for many times we haven't really been able to connect like this one-on-one in front of you. And we are all one. We love all of you, and we hope you will love all of us. And thank you so much for this evening for inviting us. Thank you, Mayor. Thank you, Senator. Thank you. Thank you. उनको मिठाई या प्रसाद का प्रभाव तालियों के महास्वर से हम महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई सरप्रीत जी एक मधुर भजन की कृपा देंगे। अभी हम कुछ रिश्तों के बारे में संस्कृति आ जाएंगे, तब तक जो रिश्ते मैं आपको देने जा रहा हूं। ये जो वार्तालाप, क्योंकि यहाँ की सरकार है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की इंटेलिजेंसी है, एक बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी का इनका सिस्टम है। उनको ये मैसेज ये पता लगेगा। पहले ये हमारा सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, जो ट्रांसलेशन है, उस तक ये एक वार्तालाप थी, एक मैसेज देने का था कि क्या जो हम करेंगे ठीक है। ये इस प्रकार का जो प्रारूप था, हम ये भी देना जरूरी था, क्योंकि अगर ये इनको पता लगेगा तो आपकी ये पूजा करेंगे, ये सच में आपकी पूजा करेंगे। ऐसे ऐसे रहस्य में आपको दूंगा, ऐसी ऐसी साइंस में आपको दूंगा। अब एक फैक्ट है जो हमारी जिंदगी को ठीक करता है, वो कहीं से भी हो, हम जाते हैं सब जगह, वो कहीं से भी मिले, किसी के पास भी मिले। तो ये जो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं, आपके प्रॉब्लम का, आपकी समस्या का, इसके बारे में किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है, कोई ऐसी बात है, कोई भी पूछने की है, किसी ने प्रश्न उत्तर दिए हैं, लिख के दिए हैं, हम जल्दी इसको निवारण टू दी पॉइंट पे आके इसको जल्दी हम इसको करेंगे। अगर किसी ने कुछ प्रश्न ऐसा पूछना है, कुछ भी ऐसा कहना है, तो वो प्रश्न कोई वर्मा जी के पास आए तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद ये मेरे से आपको दे रहा हूँ, फिर वार्तालाप बंद हो जाएगी, फिर सरप्रीत जी भजन गाएंगे और मैं ये पाठ करके आपको दे रहा हूँ। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने जो अभी जो उनकी कृपावाणी रही है, जिन्होंने इस साउंड साइंस के बारे में जो कृपा की है, उसके बारे में कोई भी जो कि बहुत बड़ी संख्या में या विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, आप लिखकर भेज सकते हैं। अभी मैं तो पाठ करूंगा, तब तक सरप्रीत जी भजन गाएंगे और उसके बाद ऋतु जी 2-4 मिनट 5 मिनट जो इनके भाव में आएंगे, वो भी अपने भाव जो उनके वो रखेंगे, जैसे तीर्ण से जो इनके अंदर से आएगा वो रखेंगे। इसके बाद मैं पाठ करूंगा और वो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहले हम ऋतु जी से सुनेंगे, उसके जो भाव है, विचार है, ये काफी एक्सपीरियंस है उनके, कई विद्या, कई टेक्निक, कई साइंस, कई ध्यान की विद्या इन्होंने सीखी हुई है, इन पर कृपा है। ये भी एक 2-4 मिनट 5 मिनट फ्री होकर अपने भाव रखें। मेरी प्रार्थना है बहन ऋतु जी जो भी उनके भाव हैं कृपा करेंगे, उनको माइक कृपा करके दे दीजिएगा।
माइक को थोड़ा लिख करें। साउंड को बढ़ा दीजिएगा। 5-7 मिनट कोई उठेगा नहीं, मैं पाठ करूँगा आपके लिए, जहाँ है वहाँ बैठ जाए। साथ संगत जी, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुदेव के साथ रही हूँ, जब तक मैंने देखा है, गुरुदेव ने हम सबके लिए पाठ किया है और हम सबकी तकलीफों को दूर किया है, और ऐसे ही वो हम सबकी तकलीफों को आगे दूर करते रहे और हम सबके लिए पाठ करते रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। जो आपका भार है, समान है, गुरु जी उठाते रहे, अपना गुरु जी पाठ करते रहे, हम ना करें। एक रहस्य आपको बताएं, जो हम कष्टों से मुक्त हो रहे हैं विश्व के भाई बहन, अपने असाध्य कष्टों से, हमारे पाठ का प्रभाव होता है 0.1%। जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हम सब के लिए पाठ करते हैं, उससे हम ठीक होते हैं। हम जो पाठ करते हैं उसमें तो हमारा मन नहीं लगता ना, तो आप तो हम सबके लिए पूरे मन से और भाव से पाठ करते हो, तो आपके पाठ का सब जल्दी होता है। उसमें ये पूछना चाहिए कि जो आप पाठ करते हो उसका असर होता है। अब ये ठीक नहीं है, अगर कहीं मैं 4-5 दिन पाठ ना करूं तो आपको लगेगा आपके पाठ का फायदा ही नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप लग रहे हो कुछ नहीं होगा, ये सच है। लेकिन ऐसा क्यों है? मैं करता हूं और आपको फायदा होता है, तो आप करते हो तो आपको 0.1 क्यों होता है, 100% क्यों नहीं होता आपका? ये क्वेश्चन करें भी, ऐसी क्या बात है? आज अब समय कम है, फिर अगली बार जब आएंगे तो क्वेश्चन करना, ये ऐसी क्या बात है? आप और मैं अगर ये पाठ ना करूं, 4-5 दिन पाठ ना करूं, तो आप सब बीमार हो जाएंगे, तो आप जैसे कि वैसे हो जाओगे। अब जैसे लाइट है, लाइट जल रही है, कनेक्शन इसका कहीं से पावर हाउस है, पावर हाउस का कनेक्शन भी कहीं और पावर हाउस से है। अगर बड़ी मेन पावर हाउस से कनेक्शन हट जाए तो ये बंद हो जाएगी, फिर आप बल्ब करते रहना, स्विच ऑन ऑफ करते रहना, नहीं जलेगा। वो जो कनेक्शन है, पावर हाउस है। ये माइक को थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें और सुंदरता से उसको, वो उस रहस्य के बारे में भी फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी ऋतु जो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी कर सकती है, इसके अंदर बड़े गहरे क्वेश्चन आते हैं और बड़ी भाव ध्यान की बड़ी गहराइयों की ऐसी विधि सीखी है, इसके पास जो किसी के पास नहीं है, किसी संतों के पास भी नहीं है। और कोई अगर आपका कार्य नाम भी होता हो, ये मैं बता रहा हूँ अभी आपको, कभी नहीं बताया मैंने, कोई आपका कार्य नाम भी होता हो तो उनका आशीर्वाद ले लेना, आपका वो काम हो जाएगा वैसे। और ट्राई कर लेना, इनका कोई दिल दुखा दे तो वो आदमी का कोई काम नहीं होगा, वो भटकता रहेगा, ये भी है। तो कई रहस्य हैं जो अलौकिक प्रकार से मिलती है, अलौकिक प्रकार से होता है, कई लौकिक प्रकार से होता है। और इनके जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो वो इसलिए समझने लायक है क्योंकि इन्होंने ध्यान की गहराइयों को भी देखा है, एक उस वात्सल्य प्रेम के भाव को भी देखा है, और बाहरी जगत के जो आंतरिक प्रभाव है, जो आंतरिक अलौकिक रहस्य है, फीलिंग है, जो अनुभव है, वो भी इनको पता है। तो इनके जो प्रश्न है 2-4 है, उस प्रश्न आप सुनना, इनके उत्तर सुनना जो आपके काम के, जो इनके भाव में आएंगे वो प्रश्न पूछेंगे। गुरुदेव, 3-4 दिन पहले आप बता रहे थे कि जो इंसान को गुस्सा आता है वो गलत होता है, तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर हमारे सामने कोई गलत कर रहा है और हमको पता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसका दूसरा बंदा साथ दे रहा है, तो हमें गुस्सा आएगा, तो फिर क्या हम गलत हुए? एक तो ये है कि आप अपना काम कर लो,
दूसरा ये कि जो आज मैं आपको पाठ दूंगा, वो आदमी गलत कर रहा है और आप मन ही मन में वो पाठ को करते रहना, और थोड़े दिनों में आप देखोगे उस बंदे को कितना नॉलेज हो गया, उसको कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी, वो कितना दुखों में चला गया, और जो वो कह रहा था, बोल रहा था, गलत कर रहा था और दिखा रहा था मैं ठीक हूं और था गलत, जो आप समझाना चाह रहे थे समझता नहीं था, आप केवल पाठ करना, थोड़े दिनों में आपको पता लगेगा कि उसको पता लग गया, रियलाइज हो गया और वो ठीक डायरेक्शन में चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था कि आप कहते हो कि जो बंदा गलत कर्म करता है उसका फल उसको जन्म के हिसाब से मिलता है। उसने गलत कर्म किया तो अगले जन्म में वो कभी गरीब बनता है या कभी कोई पशु पक्षी बनता है, तो हो सकता है अगले जन्म में वो अच्छा इंसान हो, तो उसका फल उसको उस जन्म में क्यों मिलता है? उसका फल उसको उसी जन्म में क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगले जन्म में तो बेचारा अच्छे कर्म कर ही रहा है, तो उस जन्म में वो क्यों उस पाप का फल भोग रहा है जो उसने पिछले जन्म में किया था? या तो फिर उसको अपना पाप याद रहे कि हाँ कि मैंने पिछले जन्म में ये गलत काम किया था, इसकी वजह से मैं गरीब बनाऊं या इसकी वजह से मैं पशु बनाऊं, तो शायद तब उसको रियलाइजेशन होगा। जब उसे याद ही नहीं है कि उसने गलत काम किया है और इसकी वजह से उसको पशु या पक्षी बनाया गया है, तो फिर उसको रियलाइजेशन कैसे होगी उस चीज की? ये बड़ा गहरा प्रश्न है और इसकी मैं आपको मंत्र दूंगा, पाठ दूंगा। वो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उससे उसके पीछे जन्म की याद आ जाएगी, सारी छीन आ जाएगी। और अब सरप्रीत जी भजन गाएंगे और मैं 1-2 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूँ। तो किसी का कोई ऐसा प्रश्न है तो वो लिख के वर्मा जी को देते हैं। वर्मा जी जी, एक जिज्ञासा है नीलम जी की, नीलम दुआ जी। अगर सब में भगवान है तो हम कई बार दूसरों के बिहेवियर से दुखी क्यों होते हैं? सब में भगवान नहीं है, पहले समझ लेना। जैसे मछलियां जब श्री गुरु साहब में वर्णित है कि तू दरिया दाना बिना में मछली जैसे अगला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे नीचे फूट मरा। परमात्मा ऐसे है जैसे समुद्र में मछलियां, मछलियों में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछलियां हैं। मछलियों में भी समुद्र है लेकिन समुद्र में मछलियां हैं। अब मछलियां हैं समुद्र में लेकिन मछलियां लड़ती भी हैं, एक दूसरे को खा जाती हैं, झगड़े करती हैं। अगर समुद्र ना हो तो मछली चल ही नहीं पाएगी। जैसे हवा है, हवा के होने से हम चल रहे हैं, अगर हवा खत्म हो जाए हम मर जाएंगे। हम एक दूसरे को मार भी नहीं सकते, प्रेम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा खून का चलना रुक जाएगा। जैसे हवा के होने से हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ऐसे हवा भी परमात्मा के अंदर चल रही है। हवा अगर परमात्मा थोड़ी देर के लिए हट जाए तो हवा खत्म, हम सारे वहीं का वहीं खत्म, बस सारे। पानी भी रुक जाएगा, पानी भी हवा से चल रहा है, हवा के चलते। पृथ्वी से परमात्मा के हटते ही हम सारे हट जाएंगे। जैसे हम यहां बैठे हैं, पेड़ है, पेड़ पे फल लगे हैं, आप पत्तों को काटते रहोगे, अगर आप जड़ को हटा दो तो पेड़ भी हट जाएगा, पत्ते भी हट जाएंगे, फल भी हट जाएगा, सारे हट जाएगा। इसी प्रकार ये जो रहस्य का जो आरोप मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसे आप इसको जानोगे आप लगेगा आपकी समस्या सारी समाप्त होगी, आप चिंताओं से पार हो गए, आप चिंताओं से मुक्त हो गए। और कोई? राजेंद्र नाथ सक्सेना जी ने प्रश्न रखा है। मेरी प्रार्थना है आप स्वयं आइए, क्योंकि जो डिग्निटरीज आए थे आप उनके वार्तालाप सुन रहे थे। कौन आए थे? जो यहाँ गेस्ट आए थे हमारे। गेस्ट नहीं बोला जाते, जो हमारे, अब तुम उनको गेस्ट मानोगे वो भी तुमको मानेंगे। जो भाई बहन आए थे, राजेंद्र नाथ सक्सेना जी,
ले ले इनका। गुरुदेव और गुरु माता चरणों मेरा चरण स्पर्श। मैं पिछले 2-3 साल से आप लोगों का ये टीवी के माध्यम से ये सुन रहा हूँ और कुछ इत्तेफाक की बात ऐसी है, मैं इसी रो में जहाँ ये फॉरेन डिग्निटरीज आ बैठे थे उनके पीछे बैठा था और उनकी वो मरमर सुन रहा था, उनकी आवाज सुन रहा था। तो वो कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो आपने कहे थे कि ये साउंड थ्योरी जो है, ये काली मिर्च सॉल्ट का ब्लैक पेपर के सॉल्ट के साथ में कुछ साउंड थ्योरी जो है उसके वर्ड से वो उसको ठीक हो जाता है। अगर खाली काली मिर्च या नमक खाएंगे तो उससे नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो हम लोग तो जानते हैं कि ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो हिंदी के हैं वर्ड्स हैं, लेकिन वो ये उसमें आपस में सोच रहे थे कि क्या वर्ड्स हैं। और दूसरा कुछ एक और बताया था कि ये सोचने में तो थोड़ा था मैंने सोचिए तो सही। एक वो उसकी अभिलाषा थी कि वो पता चले तो हम थोड़ी देर और बैठे। नहीं वो बैठे तब देखा, इसलिए मैंने लेट किया वो जाए। दूसरी चीज ये थे कि वो मियाँ बीवी की आपने फाइट बताया था कि भाई वो आपस में उनका लव रहे और फिर वो इस आपस में उनके झगड़े जो होते हैं वो अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बताएंगे साउंड के माध्यम से, कॉस्मिक थ्योरी के साउंड के माध्यम से, कि वो बताने से कि वो आपस में उनका प्रेम होने लग जाएगा। तो वो हंस रहे थे बीच में बैठे थोड़े से, तो भी कर रहे थे। और तीसरी बड़ी अच्छी बात, वो जो हंस रहे थे, हंसने में 2 तरह से हंसता आदमी। जी हाँ, वो बस एक तो हंसता है मजाक से भी, ये सच्चा है या नहीं सच्चा है। एक हंसता है भी बात तो अच्छी है, अगर ये हो जाए तो अच्छा है, पर मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे मांगू, कैसे रुकूं, कैसे कहूं। फिर वो हंस लेता है। एक आदमी अकारण हंसता है, एक आदमी बेमतलब हंसता, कोई कारण नहीं होता। एक आदमी को जैसे कुछ चुटकुले हैं वो आप अभी सुनाओ, अभी हंसी आ जाएगी। एक चुटकुले है 2-4 मिनट में समझने के बाद आ जाएगी। कुछ चुटकुले हैं जिसको सुनकर 2 दिन के बाद आदमी हंसता है, उसको समझ में नहीं आता। अब जैसे वर्मा जी बेमतलब हंसते, मतलब ही नहीं होता। बच्चों के कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना चाहिए। अब किसी का डेथ हुई, जैसे हाँ जी क्या हुआ, अच्छा ठीक है। अब वो उसको सुनो तो सही। ऐसे क्योंकि इन्होंने वो जो पुराने संस्कार है, अब आप बैठे हैं, एक तो मैं लेट आया, आप बैठे हैं, ये ऋषि मुनियों ने तपस्या करने वालों को दिया है। जब श्री गुरु साहब कह रहे हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। रामायण कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं कि सभी पदार्थ हैं, सदगुरु